Good morning students. Today we are going to revise lesson number 1 of class 7, that is nutrition in plants. So first of all, coming to the terms nutrition and nutrients. What is the definition of nutrition and nutrients? Nutrition is a process in which organisms take in food inside the body by the process of ingestion and then utilize that food. Utilization means the food is broken down into simpler substances and it gets absorbed by the body for various processes such as growth, repair and for providing energy. So basically nutrition is a process of taking in food and its utilization by the body. Now coming to the term nutrients, we eat food. Now what is inside the food that provides energy to our body? It is the nutrients. So we can say nutrients are the materials that provide nutrition to the body, such as carbohydrates, fats, minerals, proteins. These are all the nutrients. These are present inside the food that gives energy to our body. Now, mode of nutrition. There are two modes of nutrition. First is autotrophic mode of nutrition. Other one is heterotrophic mode of nutrition. Now, the word auto means self, apne aap, and trophic means nutrition. So, autotrophic mode of nutrition means the mode of nutrition in which organisms prepare their food by their own. And we all know who prepare their food by their own? Green plants. Green plants have the capability of preparing their food by their own by the process of photosynthesis. Now, why green plants? Only green plants can prepare their food. Why only green plants can undergo the process of photosynthesis? Because they have a pigment called chlorophyll present inside them, which helps in trapping the solar energy from the sun. क्लोरोफिल जो उनमें होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है. एंड फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which the plants prepare their food utilizing the sun's energy. Obviously we are going to study photosynthesis in detail later on, but first coming to the next mode of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition. Now here we have read that auto means self. So the organisms, or we can say green plants that can prepare their own food are called autotrophic, autotrophs, and the mode of nutrition is autotrophic. The word hetero means other and trophic means nutrition. It implies that heterotrophic mode of nutrition is that nutrition in which organisms are not capable of preparing their food by their own, but they are dependent on others, on autotrophs or on other organisms for obtaining their food. Such organisms are known as autotrophs. जो खुद खाना प्रिपेयर नहीं करते, they are dependent on others for preparing their food. Now there are three types of heterotrophic nutrition. First is saprophytes or saprophytic mode of nutrition. Now we have studied earlier also in 6th class also what are saprophytes. Saprophytes are the organisms that feed on dead and decaying organic matter. Sapro word means rotten. Sapro का मतलब होता है rotten. Rotten means क्या होता है? खराब, सड़ा हुआ. So the organisms that feed on dead and decaying. Dead और decaying matter कौन से होते हैं? जो मर गए हैं और मरने के बाद उनकी बॉडी जो है वो खराब होने लगती है, डिटेरियोरेट होने लगती है. तो वो organisms जो dead और decaying matter पे feed करते हैं, that are known as saprotrophs, and the mode of nutrition is saprophytic mode of nutrition. Example includes fungi, particularly mushroom. Second is parasitic mode of nutrition. What are parasites? Parasites are the organisms that live inside the body of other organisms and they derive their nutrition from them without killing them. पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और उनको किल नहीं करते. विदाउट किलिंग देम दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन. दोज आर नोन एज पैरासाइट्स एंड द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच पैरासाइट्स लिव इज कॉल्ड द होस्ट. जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पैरासाइट्स रहते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं. एग्जाम्पल इंक्लूड्स कस्क्यूटा एंड मिसलेटो.
नाउ कस्क्यूटा इज कॉल्ड अमरबेल. अमरबेल आप सबने सुना ही होगा, जनरली प्लांट होता है. तो कस्क्यूटा हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हॉस्टोरिया. हॉस्टोरिया उसमें प्रेजेंट होता है स्पेशल स्ट्रक्चर जो फूड ऑब्टेन करने में हेल्प करता है. वो क्या करता है, जिस ट्री पे, दूसरे ट्री पे वो रहता है, कस्क्यूटा जो सराउंड करता है जिस ट्री पे, उस ट्री के टिश्यूज को एकदम से पकड़ लेता है और फिर उसमें से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन? Symbiosis means it is the association between two organisms in which both the organisms are benefited from each other. दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन है और दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एसोसिएशन है जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिट होते हैं. एग्जाम्पल इज लाइकन. वन एग्जाम्पल इज लाइकन. इट इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. नाउ what do these two contributes to each other? Fungi gives shelter and water and minerals to algae, and in turn algae, what algae does? Algae gives the food to the fungi. Fungi algae को shelter और water और minerals provide कर रहा है और algae fungi को food provide कर रही है. तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे से benefited हैं. So this type of association is known as symbiotic association. One more example I am giving, it is the common example, the association between leguminous plants and the rhizobium bacteria. Leguminous plants कौन से होते हैं? Leguminous plants होते हैं जैसे pea plant हो गया आपका, जो नीचे roots ग्राउंड के नीचे होते हैं. ग्राउंड नट हो गया आपका. दीज आर ऑल दी लेग्यूमिनस प्लांट्स. उनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. नाउ अब ये दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है, मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम का एसोसिएशन है. सो बोथ विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. कैसे बेनिफिट करते हैं? नाउ राइजोबियम बैक्टीरिया इज एबल टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट्स आर नॉट एबल टू ट्रैप दैट नाइट्रोजन. प्लांट्स वो नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि प्लांट्स ले सकते हैं. सो दिस फंक्शन इज डन बाय राइजोबियम. तो राइजोबियम क्या कर रहा है प्लांट के लिए? लेग्यूमिनस प्लांट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके दे रहा है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में. फिर वो जब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स एब्जॉर्ब करता है राइजोबियम, प्लांट्स उससे अपना प्रोटीन्स बनाते हैं. एंड इन टर्न व्हाट लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम को क्या कर रहे हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स राइजोबियम को फूड प्रोवाइड करता है. राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए स्पेस दे रहे हैं क्योंकि वो प्लांट उसकी रूट नोड्यूल्स में रह रहे हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और फूड प्रोवाइड कर रहा है. तो दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड है. लेग्यूमिनस प्लांट्स कैसे बेनिफिट है राइजोबियम बैक्टीरिया से? राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फॉर द लेग्यूमिनस प्लांट्स. और राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे बेनिफिटेड है? राइजोबियम बैक्टीरिया lives in the root nodules of leguminous plants. So plants give food as well as shelter to the rhizobium bacteria. तो इस तरीके से ये दोनों benefited हैं. So these three comes under the heterotrophic mode of nutrition क्योंकि ये तीनों ही अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है for their food. Now coming to photosynthesis in detail. Photosynthesis क्या है? Very general definition we have read in junior classes also. Photosynthesis is a process by which green plants prepare their own food in the presence of chlorophyll and sunlight by utilizing carbon dioxide and water. फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में. और होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज की फॉर्म में. नाउ ग्लूकोज इज अ सिंपल सब्सटेंस. और ग्लूकोज जो आपका फूड प्रिपेयर हुआ प्लांट्स में वो ग्लूकोज की फॉर्म में हुआ. और जब स्टोर्ड होता है फूड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म.
क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? सबसे पहले सन की एनर्जी से, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल ही है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। अब सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, वाई ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड? सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना क्यों बना सकते हैं? बिकॉज दे हैव द स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देम। नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो सन की एनर्जी प्लांट्स तक नहीं पहुंचेगी। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंबाइन होके ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज expelled out, or we can say it is produced or liberated by the plants. Clear? Now here coming to the conditions necessary for photosynthesis. अभी यहाँ हमने रिएक्शन देखी फोटोसिंथेसिस की, अब यहाँ पे रिएक्शन से हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए what do we need? We need carbon dioxide, we need water, we need chlorophyll and sunlight. So these four are the conditions necessary for photosynthesis. Sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Here we can see in the diagram, sunlight कहाँ से मिलती है green plants को? Obviously from the sun. Sun is the ultimate source of energy that gives solar energy to the plants. And carbon dioxide कहाँ से मिल रही है? Carbon dioxide from the atmosphere. एटमॉस्फेयर में से मिल रही है। हमारे एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था ना, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। एंड हाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स? बाय द स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है? दो गार्ड शेप्ड सेल्स होते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, सराउंडेड बाय द एपिडर्मल सेल्स। तो ये स्टोमेटा के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। नेक्स्ट है क्लोरोफिल का बता दिया मैंने। वाटर कहाँ से होता है? वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो रूट्स में से। ऑब्वियसली जो वाटर आपने देखा होगा, आप भी जब वाटर में प्लांट्स में वाटर डालते हो तो इट गेट्स क्विकली एब्जॉर्ब। तो कैसे एब्जॉर्ब होता है? जो रूट्स होती हैं सॉइल में वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। सो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ रूट्स, एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो रहा है और ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। So these are the conditions necessary for photosynthesis. Now last topic of this chapter is insectivorous plants. Insectivorous plants क्या होते हैं? As the name suggests, the plants that trap the insects and obtain their nutrition from those insects. जो plants insects trap करते हैं और उनसे अपना nutrition derive करते हैं, that are known as insectivorous plants. Example है pitcher plant and Venus flytrap. Common example है। पिक्चर प्लांट में क्या होता है? पिक्चर मीन्स क्या होता है? एक मटके जैसा होता है, मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है उस प्लांट का, एंड देयर इज अ लिड, उसके ऊपर एक लिड होती है। व्हाट हैपन्स? जैसे ही वहाँ पर स्टिकी, जो उसका पिक्चर का ऊपर का टॉप पोर्शन होता है वहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट्स जब आता है उस पर, पिक्चर प्लांट पे बैठता है, तो व्हाट हैपन्स? जो उसकी लिड होती है इट गेट्स क्लोज्ड, तो इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो गया पिक्चर प्लांट के अंदर। नाउ दैट इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इनसाइड द पिक्चर प्लांट। तो इस तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन इंसेक्ट से डिराइव करते हैं। नाउ insectivorous plants are green in color, and if they are green in color, that means they are able to prepare their own food. Then why they need to trap insects? जब वो ग्रीन कलर के हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उनको इंसेक्ट्स ट्रैप करने की क्या ज़रूरत है? इंसेक्ट्स किस लिए ट्रैप कर रहे हैं? वो न्यूट्रिशन के लिए ट्रैप कर रहे हैं। तो जब वो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं तो क्यों उनको इंसेक्ट्स ट्रैप करने की ज़रूरत है? Because insectivorous plant grows in the area where soil is deficient in nitrogenous materials.
इंसेक्टिवोरस ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहाँ जो सॉइल है वहाँ नाइट्रोजनस मटेरियल नहीं होता. सो टू compensate that the need of the nitrogen they trap insects. वो इसलिए इंसेक्ट ट्रैप करते हैं तो जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो सके. So this is all about the first chapter. I hope the first chapter is now clear. This was the revision of lesson number 1, nutrition in plants. Thank you.